In our today's session, we'll talk about food security. Food security, as we know, food is as essential for living as air is for breathing. But food security means availability, accessibility, and affordability of food to all people at all times. So, food security has following dimensions. Availability of food means food produced within the country plus food imports plus previous grains stored in government granaries. The second one is accessibility means food in within every person, reach of every person. Affordability implies that an individual has enough money to buy sufficient and nutritious food to meet one's dietary needs. Why food security is necessary? Because some poorest section of the society might be food insecure when country in each and every country some peoples are food insecure and they faces disaster calamity like earthquake drought flood tsunami or nowadays as we all over the world faces the corona pandemic. All the situation creates a shortage of food and decreases the food grains production. Due to shortage of food, some people cannot afford to buy food and situation may cause causes of starvation. Especially the agricultural labor, the transporters, the workers and the people who are below the poverty line. As we know, the most devastating famine in Bengal, which occurred in 1943, it shows the food security in India. And nowadays, we suffer from the corona pandemic, which is also very necessary for all, which is very necessary for all the section of people of the poorest who have not any work to do and they might be in a starvation situation. So food security in India is very necessary in world also. Who are food insecure? Although a large section of people suffer from the nutritious insecurity in India and world also, but the most affected groups are the traditional artisan, PT is self-employed workers and distributors, including people as Ramu as casual labor in the rural area, and the uh, Ahmad, which is rickshaw pullers, suffer in urban area, as our chapter shows. According to the National Health and Family Survey, NHFS said in 1998-99, the number of such women and children is approximately 11 crore. The food insecure people are proportionally large in some areas and of the country like Bihar, Eastern UP, Jharkhand, Odisha, West Bengal, etc. In this connection, in this concept, India is aiming to self sufficiency in food grains by the independence. The government had started so many work for the food security of Indian people. The first one is Green Revolution. In 1960s, the government had started the Green Revolution by the use of high-yielding seeds variety to producing of grains improved and much in large number. The second one is food security in India, which was started in 1970. India is become self-sufficient in food grains during the last 30 years because of a variety of food grains all over the India the people the farmers grow. The third one is buffer stock.
Buffer stock is a stock of food grains, namely wheat, rice, produced by the farmer, and the government mm, take this. Buffer stock is stock of food grains, namely food and rice, produced by the farmers and purchased by the government by the Food Corporation of India. The FCI purchased the food grains where where their surplus production on a certain price, a certain support price, and these grains are stored in granaries. Somewhere it is distributed in issue price which is lower than market price. The fourth one is public distribution system. After the food produced by the procured by the FCI is distributed through government regulated ration shops among the poor, then poorest section of the society. This is called the public distribution system. It is also called fair price shops. The next one is integrated child development services, introduced in 1975 as food for work for all the people, poorest people. The next one is poverty alleviation programs, which is also known as PAPS in rural areas. Next one is RPDS program, which is launched in 1992 for public distribution program. Next, the midday meals. Midday meals. The next one is targeted public distribution system. TRDP was introduced to adopt the principle of targeting the poor in all areas. The next one is Antyodaya Anna Yojana, which is also known as AAY in 2000. The next one is Annapurna schemes, APS, for the poorest society, 2000. The next one is National Food Security Act 2013 for the poorest people. And the last one is the Pradhan Mantri Anna Dhan Yojana 2020. But sometime the PDS dealers found restoring the malpractices like diverting the grains to open market. As per the NSSO report in India, the per person per month has increased by 66% consumed, which is doubled in 2004 and 2005. The last one is the role of corporation in food security. The cooperatives are also playing an important role in food security in India. The cooperative societies set up shops and sell low priced goods to poor. For example, Mother Dairy in market starts in provision of milk and vegetables to the consumers at controlled price. Similarly, in Maharashtra, the Maharashtra Academy of Development Science has facilitated a network of NGOs for setting up grant banks in different regions. It also organizes training and capacity building programs on food security. For NGOs, its grain bank program is acknowledged as a successful and innovative food security intervention. Amul is another cooperative in Gujarat. It has brought white revolution in the country. In Hindi, हम समझ सकते हैं कि खाद्य सुरक्षा किसे कहते हैं.
खाद्य सुरक्षा हम उसे कहते हैं जब हमें हर व्यक्ति को खाने के लिए सुविधाएं उपलब्ध हों और हर इंसान को एक समुचित मात्रा में जितने विटामिन्स वगैरह हों उसके साथ में उसे खाना मिल जाए, तो उसे हम फूड सिक्योरिटी कहते हैं। जैसे कि हमारे जीवन में हवा का महत्व होता है जीने के लिए, वैसे ही खाने का महत्व होता है हमारे जीवन के लिए। इसलिए जो भोजन का सुरक्षा है, खाद्यान्न सुरक्षा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। और इस स्थिति में हमें 3 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। सबसे पहले जो है वो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, यानी जो खाना है वो सभी लोगों तक पहुंच जाए। और वो कैसे पहुंचेगा? पहला तो जो उस साल में उस जगह में, उस देश में जितने ग्रेन्स के उत्पादन हुए हैं उसमें उन उत्पादनों को भी जोड़ा जाता है, जो ग्रेन्स जो बाहरी देश से खरीदे जाते हैं, और जो पिछले समय के जो अनाज होते हैं उनको भी जोड़ा जाता है। और इसको हम अवेलेबिलिटी ऑफ फूड कहते हैं, यानी उस देश में उतना खाद्य पदार्थ जो है हमारे देश में होता है जो देश में बांटा जा सकता है। दूसरा है एक्सेसिबिलिटी, यानी वैसा खाद्य पदार्थ जो लोगों तक, जो गरीब हैं या जिनको खाने में को मिलने में परेशानी हो रही है, वहाँ तक ये खाद्यान्न आसानी से पहुँच सके। नेक्स्ट है अफोर्डेबिलिटी। इसका मतलब होता है कि हर लोगों के पास इतने पैसे होने चाहिए कम से कम कि वो अपने जीवन को यापन करने के लिए, अपने जीवन को अच्छे से चलाने के लिए अनाज को खरीद सके। इस फूड सिक्योरिटी की, खाद्य सुरक्षा की क्यों ज़रूरत पड़ती है? इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है कि हर देश में, कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ की कुछ लोग गरीब ना हो। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ज़्यादा इनकी परेशानी है। बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत गरीब हैं और उनको खाने की सुविधा नहीं होती। और कभी कभी बहुत अच्छे डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी जबकि डिज़ास्टर आते हैं, जो नेचुरल कैलामिटी आती हैं, जैसे अर्थक्वेक है, ड्राउट है, फ्लड है, उस समय भी हमें ये खाद्य सुरक्षा की ज़रूरत महसूस होती है। जैसे अभी के टाइम में हमारे यहाँ पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैली हुई है और इस स्थिति में हमें खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। जैसे हमारे भारत में, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत 80,000 लोगों को 3 महीने से भोजन दे रहे हैं और 5 महीने तक अन्न जो है वो मुफ्त में बांटेंगे। ये भी एक खाद्य सुरक्षा का एक अभिन्न अंग है। Who are food insecure? कौन से लोग हैं जो कि फूड इनसिक्योर है, जिनको कि खाद्य सुरक्षा की ज़रूरत होती है? सबसे पहले तो वो लोग होते हैं जो कि गरीबी रेखा के नीचे के लोग होते हैं। दूसरे वो होते हैं जो वर्कर होते हैं, जिनको कि रोज़मर्रा के जिनको काम करना होता है और पैसा कमाना होता है। और वो लोग भी होते हैं जो आर्टिजन होते हैं, जो रिक्शा पुलर होते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। उनको भी फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है कि क्योंकि जब इन कैलामिटी आते हैं और कुछ भी परेशानी होती है तो उनके जो रोज़ की ज़िंदगी होती है वो काफ़ी परेशान हो जाती है और उस स्थिति में उन्हें खाद्य पदार्थ की भी ज़रूरत होती है। जैसे अभी हमारा कोरोना महामारी में हमारे यहाँ लॉकडाउन चल रहा है, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, जो बहुत सारे लोग हैं जिनको खाने की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, जो कि बाहर काम करने गए थे और जो कि हमारे और भी राज्यों में रहते हैं, इसके लिए हमारे देश ने बहुत सारे उपाय किए हैं। सबसे पहला जो खाद्य सुरक्षा के लिए हमारे देश में जो उपाय किया गया वो सबसे पहला था ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो 1960s में शुरू किया गया। उस हरित क्रांति में किया, जो हाई एल्डिंग जो वैरायटीज़ के सीड्स थे उनको बोया गया ताकि अनाज का उत्पादन ज़्यादा किया जाए और जो हमारे जनसंख्या है, जो खाद्य जिनको ज़रूरत है उनको वहाँ तक पहुँचाया जाए। दूसरा है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया 1970। इसके तहत सभी लोगों को खाना देना अनिवार्य कर दिया गया और ये राज्य और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी हो गई कि कोई भी भूखा न सोए और हर इंसान को कुछ न कुछ खाना मिले ताकि वो जीवन यापन कर सके, ये उसका अधिकार होता है। नेक्स्ट है, इसके लिए हमारे जो भारत में है वो बफर स्टॉक रखा गया। बफर स्टॉक कैसे किसको कहते हैं? बफर स्टॉक उस स्थिति में कहते हैं जब अनाज को जो फार्मर हैं उपजाते हैं और उसको सरकार खरीदती है एक निश्चित प्राइस पे, जो मिनिमम कॉस्ट जिसका होता है उसके तहत खरीदती है
और सर्टेन सपोर्ट प्राइस जिसको हम कहते हैं, मिनिमम सर्टेन प्राइस, सपोर्ट प्राइस, और उस पैसे पे ख़रीद के उस अनाज को अपने पास रखती है और फिर बाद में उसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत लोगों तक राशनिंग करके यानी कम कीमत पे दूसरों के तरफ भेजती है। नेक्स्ट है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी जब अनाज बफर स्टॉक में हो जाएगा, जो कि एफसीआई के द्वारा किया जाता है हमारे भारत में, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वितरण होगा सारे जगहों में, यानी गरीब तक एक्सेसिबिलिटी जो है वो पहुंचाई जाएगी। ऐसी स्थिति करने के लिए बहुत से जो पीडीएस सिस्टम है उसको लागू किया जाता है और उसके तहत सभी लोगों को फेयर प्राइस शॉप के तहत दुकानों तक सबको पहुंचाया जाता है। इसके अलावा बहुत से स्कीम स्टार्ट किए गए खाद्य सुरक्षा के तहत। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्टार्ट किए गए जो 1975 में था, जैसे उसको फूड फॉर वर्क। नेक्स्ट है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इन रूरल एरियाज जिसको हम पैप कहते हैं। फिर है आरपीडीएस प्रोग्राम। नेक्स्ट है मिड डे मील्स। फिर है टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन 1997 में स्टार्ट किया गया, जिसको कि सारे लोगों को जो लैंडलेस हैं उनको भी दिया गया। नेक्स्ट है अंत्योदय अन्न योजना जिसको AAY कहते हैं, जो कि 2000 में स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट है अन्नपूर्णा स्कीम्स जिसको APS कहते हैं, जो पुअरेस्ट बहुत गरीब लोग हैं उनके तक पहुंचाया गया APS। नेक्स्ट है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, यानी 2013 एक्ट जो नेशनल फूड सिक्योरिटी का बना, उसके तहत भी सारे लोगों को भोजन के लिए पहुंचाया गया। और लास्ट में जो अभी का बना हुआ है प्रधानमंत्री अन्न धन योजना, इस 2020 में बना है, जो सभी लोगों को धन भी पहुंचाता है और सभी लोगों को पैसे भी पहुंचाता है, अन्न भी पहुंचाता है और पैसे भी देता है, ताकि कोई भी जो लोग हैं वो गरीब ना रह जाएं और भूखे ना सोएं। ऐसे हमारे भारत सरकार की मंशा होती है। इसके लिए हमने देखा है कि 2004 से 2005 में बहुत जो इसका खाद्य सुरक्षा का जो प्रभाव है एफसीआई के द्वारा जो वितरण किया गया और कंजम्पशन जो बढ़ा है वो डबलिंग रेट हो गया है पहले से के तुलना में। अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ कॉपरेटिव्स एंड फूड सिक्योरिटी। जो कॉपरेटिव बैंक जो कॉपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं उनका क्या रोल होता है इन फूड सिक्योरिटी में। ये फूड सिक्योरिटी में इन कोऑपरेटिव बैंक्स का बहुत सारा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। जैसे कि हम देखते हैं अमूल दूध है या मदर डेयरी है, और एक महाराष्ट्र का एक प्रोग्राम है उसमें भी हम देखते हैं जिसको महाराष्ट्र एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस कहते हैं, और कुछ NGOs हैं। ये सारे लोग मिलके जो होते हैं इस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को आगे बढ़ाते हैं और कम कीमत में, कम पैसे में न्यूट्रिशियस डाइट यानी संतुलित भोजन सारे लोगों तक पहुंचाते हैं, और इनमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कि अमूल ने भी एक स्टार्ट किया था वाइट रिवॉल्यूशन, यानी दूध की क्रांति स्टार्ट की थी, जिससे खाद्य सुरक्षा को काफ़ी बल मिला। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।